So today's topic is partial differentiation. In the 12th class or in the 11th class, you have already studied about the differentiation, means how to differentiate a function of single variable. So suppose fx is a function of variable x only, then the differential coefficient of the mathematical definition of differential of fx with respect to x is d over dx of fx, and it is equal to limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus fx over delta x, provided this limit exists. So it is not that for every function the differential exists. So if this limit exists, then we say the derivative of fx is d over dx fx or f dash x. So this is the mathematical definition of differential of fx with respect to x. So whenever a function of single variable is given, the derivative of that function d over dx fx is f dash x, which is limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus fx by delta x. So what we are doing, we are simply increasing, means we are changing the independent variable by lambda x delta x, and with respect to this change in independent variable, what is the rate of change in the dependent variable, that is function. So this d over dx means the derivative of fx that represents the rate of change in the dependent variable with respect to the change in the independent variable. So this is your differential coefficient, and this is called ordinary differential coefficient. Why? Means if a function is given, if this function is of single variable x, then the derivative, the differentials are called ordinary differentials. But when we have more than one independent variable, so in the previous case we have f of x, that is this function is, this is a function of x variable only. But suppose this is the function is given like this, function of xy, so here we have two independent variables x and y. So and this u or f is dependent variable. So there are two independent variables. So in this case, if we have to calculate the derivative or differential of this function, then there are two type of first order derivatives. These are not ordinary because in this case we have more independent variables. So now the differential coefficient of u or f with respect to x, keeping y as constant, because in this case we have only one variable x, so the total change in the function is with respect to x only. But suppose this is a function of x and y both, and we are making the change only in x, so with respect to that change, the change in this function is called partial change, because we have another variable y, we are keeping that constant, we are changing this variable x only. So uh, this type of derivative is partial derivative. So like the same thing is written here, if u is equal to function of xy is a continuous function of two independent variables x and y, then the differential coefficient of u with respect to x, keeping y as constant, is called partial derivative or partial differential coefficient of u with respect to x, and it is denoted by del u over del x. So now we are not writing d over dx, instead we are writing del over del x. So it is either, there are a lot of notations because we have u is equal to function of xy, so either we write del u over del x or del f over del x or fx, that is differential of a function with respect to x, ux differential of u with respect to x, fx xy, so differential of f of xy. So either we write f or f of xy with respect to x. So these are the notations of first order derivatives with respect to x. So these are called partial derivative of the function with respect to x. Similarly, we have the partial derivatives with respect to y, del u over del y or del f over del y or fy uy fy xy. So there are a lot of notations.
So when we have single independent variable in the function, we calculate the ordinary derivatives, and once we have more variables, more independent variables, then the derivatives are called partial derivatives. So this is the partial differentiation. So in this topic we have the functions of more than one variables. So we will calculate the derivatives of that function with respect to the independent variables. We may have 2 or 3 or 4 independent variables. So symbolically, if u is a function of xy, then the partial derivative, if exists, with respect to x is written as del u over del x, and it is limit delta x tends to 0 f of x plus delta x y minus fxy. So this is our original function fxy. What we are doing, we are making the change with respect to x only. Clear? So delta x, so we are making delta x change in x and keeping y as constant. So with respect to this change in x, what is the change in the function with respect to this delta x? So this is called partial derivative of the function with respect to x. And similarly, del u over del y is limit delta y tends to 0. That means now we are making change in the y variable only. So f of x plus y plus delta y, f of xy, this is original function, divided by delta y, and delta y tends to 0. So we are making very small change in the independent variable y. So these are the mathematical definitions of del u over del x and del u over del y. So in this case, we have 2 independent variables. If suppose we have more than 2 independent variables, then also suppose f of a function of x, y, z. So we have del u over del z also. So similarly, we can calculate that derivative um, also. So so how to differentiate one function with respect to single independent variable when we have more independent variable? So suppose this is your function. So clearly this is, in this case we have more than one variables, means x is there, y is there. So we have 2 independent variables, x and y, and this is the function. So del u over del x, how to calculate this? We have to simply differentiate it with respect to x and keeping all other variables as constant. So what is the differential of ax square? It is 2ax. What is the differential of 2hxy? So only x term is there. So differential of x is 1. Other terms are constant. So 2hy. Now this is by square. So there is no term including x. So the differential of this function is, this term is 0. So plus 0. Similarly, del u over del y means we have to differentiate it with respect to y. So ax square is constant with respect to y. So differentiation is 0. 2hxy, so differential of 1 y is 1, so 2hx. And similarly by square, so differential of this function is 2b by. So there is no difference in the ordinary differential and partial differential equation. Only thing is that there we have only one variable, here we have more variables, but at a time we have to differentiate with respect to single variable and keeping other variables constant. So these are the partial derivatives, partial differentials. So now we have some important points. So if u is a function of xy, then we have to differentiate partially with respect to x and y, sorry, x. Then what we have to do, then y is treated as constant, means all other variables involved in the function, they are treated as constant. Clear? If you use a function of x and y and we have to differentiate u with respect to x, then we have to keep y as constant. We have to treat y constant. Similarly, if we have to differentiate u with respect to y, then x is treated as constant. Now, if u is a function of x, y, z and we have to differentiate it with respect to x, suppose, then how many variables are left? Y and z. So we have to keep these y and z as constant. Now, some other property, these are the same properties as we have in the ordinary case, means what is the differential of algebraic sum of two functions. So z is equal to u plus minus v, means we may have u plus v or u minus v, where u and v are the functions of x and y. So the partial differentiation del z over del x is equal to, we have to operate del over del x to both of the functions.
So del over del x of u and del over del x of v, and the same sign. If plus is there, you have to keep plus. If minus is there, you have to keep minus. Similarly, del z over del y means we have to differentiate z with respect to y. So del over del y, we will operate this on both of these functions. So del over del y of u, del over del y of v, and the same sign. So in ordinary case, we write d over dx, and in partial differentiation case, we write del over del x. So d means the total, the ordinary derivative, and del means the partial derivative. So every time we will use now del over del x, del over del y, del over del z, because these are partial derivatives. If the product of two function is given, z is equal to u into v, then how to differentiate it in the ordinary case? We will use the formula first into second. So similarly, here we have del z over del x, del over del x is of u into v is equal to u, means first you have to keep this as constant, as it is, and del v over del x, and plus the second function is as it is, and into del u over del x. तो फर्स्ट आपने ऐसे ही रखा del v over del x प्लस सेकेंड एज इट इज रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन. वही रूल है जो आपने ऑर्डिनरी में पढ़े हुए हैं. सेम del z over del y means del over del y of u into v, because z is u into v. So first into second का differential, second into first का differential. So the same rules. Now the division rule, how to differentiate when we have two functions in the as fraction, u over v. So del z over del x is del over del x of u by v. So what is the formula to differentiate it? V square, v into the differential of numerator minus u into differential of denominator. So same formula, only thing is this del over del x is different from d over dx. Otherwise same rule is are there. Del z over del y is same rule, बस आपको क्या करना है, आप डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है. Now if z is a function of u and u is a function of x and y, clear? So we have a chain here. Directly we have z. Z is a function of u and u is a function of xy. So indirectly z is a function of x and y. Directly हमें क्या दिया है, z की वैल्यू in terms of u और u की वैल्यू क्या है in terms of x and y. So we can differentiate z with respect to x and with respect to y. So कैसे आपको करना है, del z over del x is equal to, फर्स्ट चेन रूल है, आपको पहले जो उसका डायरेक्ट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर डायरेक्ट वेरिएबल को x के रिस्पेक्ट में करना है. सो del z over del u into del u over del x. सिमिलरली del z over del y की वैल्यू क्या होगी, पहले आप z को डायरेक्ट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में यानी u के रिस्पेक्ट में, फिर डायरेक्ट वेरिएबल को y के रिस्पेक्ट में. सो दीज आर when we have a chain of functions. So z is a function of u is a function of xy. So del z over del x is del z over del u over del x, and del z over del y is del z over del u over del y. And if z is a function of one variable x only, then del z over del x is equal to dz over dx. क्यों? क्योंकि अब z केवल एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, तो जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे, डिफरेंशियल्स होंगे, वो सारे क्या होंगे, ऑर्डिनरी होंगे. सो dz over dx. Now if function u is equal to u xy, this function is said to be symmetric if on interchanging x and y u remains unchanged. Means for example, suppose u is equal to x square plus y square. If you interchange x and y variables in this equation, so you will get y square plus x square, which is equal to x square plus y square. Means there is no change if you change x by y and y by x. अगर आप दोनों वेरिएबल को इंटरचेंज कर रहे हो x and y को और इक्वेशन सेम आ रही है, so this is called symmetric function. So u is symmetric here also. This is 2x स्क्वायर प्लस xy प्लस 2y स्क्वायर. अगर आप इसमें x और y को इंटरचेंज कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस yx प्लस 2x स्क्वायर, द सेम इक्वेशन. सो दिस इज आल्सो सिमेट्रिक. अब सिमेट्रिक का यूज क्या है, अगर कोई फंक्शन सिमेट्रिक है तो उसके जो, अगर आपने एक बार कैलकुलेट कर लिया del u ओवर del x, बिकॉज सिमेट्री इज देयर, तो जैसा del u ओवर del x होगा वैसा ही आपका del u ओवर del y होगा. केवल आपको क्या करना है, x और y को चेंज करना है. तो आप एक ही के रिस्पेक्ट में करिए, इसे del u over del x निकालिए,
जो भी आंसर आएगा उसमें x को y से रिप्लेस कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, del u over del y. So this is the application of symmetric function. So if a function is symmetric, then del u over del x is equal to del u over del y. Only you have to change x by y. Now the partial derivatives of higher order, जैसे आपने ऑर्डिनरी में पढ़ा है d over dx, dy over dx, और फिर उसको क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है, d2y over dx square. So similarly we have the partial derivatives of second order, third order and higher orders. So directly we have u is a function of xy. तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होंगे, del u over del x, यही दो हो सकते हैं. So these are first order derivatives, del u over del x, del u over del y, first order derivative. Just as we found those for u for del u over del x, del u are the themselves function of xy. Again क्योंकि अगर हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो भी हमें जो फंक्शन मिलेगा वो भी क्या होगा, xy का फंक्शन होगा. del u over del x भी xy का फंक्शन होगा, del u over del y भी xy का फंक्शन होगा. So now we will differentiate this function once again with respect to x, with respect to y. So del u over del x को आपने x के रिस्पेक्ट में किया, अगर सपोज del u over del x को सपोज y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, del u over del y को अगर आपने x के रिस्पेक्ट में किया, del u over del y को अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, so we will get 4 second order derivatives. These are del u over del x square, del 2u over del y del x, del 2u over del x del y, and del 2u over del y square. So these are 4 possible second order derivatives. So partial derivatives of higher order. So concept is same like we have in ordinary case. We have first order derivative dy over dx. If we differentiate this with respect to x, again we will get d2y over dx square. Similarly d3y over dx cube. So in this case also we have first order derivatives del u over del x and del u over del y. So if we differentiate this del u over del x with respect to x one time more, we will get del 2u over del x square, and we can differentiate it with respect to y also. So del 2u over del y del x. So this is that. Similarly, we have del u over del y. So if we differentiate it with respect to y once again, you will get del 2y over del x, del 2u over del y square. And we can differentiate it with respect to x also. So del 2u over del x del y, this second order derivatives. So these are second order partial derivatives. So these are also represented by f double x. The suffix represents the differentiation with respect to x. So double time differentiation with respect to x. First differentiate with respect to x, then differentiate with respect to y. First differentiate with respect to y, then with respect to x, and double differentiation with respect to y. So these are second order partial derivatives. And similarly, we can calculate the partial derivatives of higher orders, means third order. So अभी हमारे पास ये चार हैं सेकंड ऑर्डर के, इनको हम और डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो डेल, इसको अगर सपोज हमने x के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट किया तो हम क्या मिलेगा, del 3u over del x क्यूब, वो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव. इसको भी x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं. सो हमें और भी मिलेंगे. तो सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स 2 होंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स 4 होंगे. इस तरह से हर एक 4 के रिस्पेक्ट में हमें 2 और मिलेंगे, क्योंकि इस फंक्शन को हम x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं. क्लियर? इन तीनों को भी हम x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं. हमें अब टोटल 8 डेरिवेटिव्स और मिलेंगे. सो 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3. इस तरह से हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स मिलेंगे ऑफ द हायर ऑर्डर्स. तो हायर ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो एक बार डिफरेंशिएट हो गया उसको फिर से डिफरेंशिएट करना, सेकंड ऑर्डर, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करोगे थर्ड ऑर्डर, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करोगे फोर्थ ऑर्डर. So now one thing is to notice that these in some books you will find that they are frequently use these terms equal, del 2u over del x del y is equal to del 2u over del y del x, but these are not similar. क्या डिफरेंस है इसमें, पहले हमें u को y के रिस्पेक्ट में करना है, फिर जो डिफरेंशियल आया उसको x के रिस्पेक्ट में. इसमें क्या करना है, u को पहले x के रिस्पेक्ट में करना है, फिर y के रिस्पेक्ट में करना है. सो डिफरेंस है ऑर्डरिंग में, इसको पहले y फिर x, इसको पहले x फिर y. So but frequently in books you will find that they are using both of the notation for the same differentials, but they are not in general equal, means the second order derivatives, these they are not equal in general, they are
equal only in one condition, when the second order derivatives are continuous at that point. Clear? Means अगर ये function del 2u over del x del y and del 2u over del y del x अगर ये continuous है किसी point पर, तो उस point पर ये दोनों derivatives equal होंगे. In general they are not equal, they are equal only when the derivatives are continuous. Clear? So what is the meaning? The order of differentiation is immaterial in this case. Means अगर ये दोनों function continuous है तो हम इसको del 2u over del y del x को हम del 2u over del x del y भी ले सकते हैं. बट अगर ये continuous नहीं है तो ये equal हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. But when they are equal, sorry, when they are continuous, then 100% we have equal derivatives. So if function u and its derivatives are continuous, then only these two second order derivatives are equal. Now the questions. So we have very simple question based on partial derivative. Means we have one function of two variables or three variables, and we have to differentiate it with respect to x, y. So how many times that depends on the question. So what is the question? If u is x sin y plus y sin x, means u is dependent variable and x and y, there are two independent variables. So we have to prove that del 2u over del x del y is equal to del 2u over del y del x. So आपको करना क्या है, दोनों कैलकुलेट करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों को इक्वल चेक करना है. तो ये आपका फंक्शन हो गया. आप क्या करोगे, del 2u कोई भी आप LHS या RHS कोई भी पहले निकाल लीजिए. सपोज LHS अगर या पहले हम इस u को x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, तो del u over del x वो कैसे करना है, इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और y को कांस्टेंट रखना है. तो x इंटू साइन वाई, तो साइन वाई तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि y की टर्म है, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल 1. सो 1 इंटू साइन वाई. सिमिलरली y कांस्टेंट है, तो y का तो y तो एज इट इज, एंड साइन x का डिफरेंशियल क्या हो गया, cos x. ऐसे ही del u del y निकालेंगे, del u del y, तो अब हम y को डिफरेंशिएट करेंगे, y वाली टर्म्स को, और x को कांस्टेंट रखेंगे. सो x एज इट इज, साइन y का डिफरेंशियल क्या हो गया, cos y. ऐसे y का क्या हो जाएगा 1 और sin x एज इट इज. So these are del u del x and del u del y. अब करना क्या है आपको, del 2u over del y del x. इसका मतलब क्या हो गया कि जो del u over del x है उसको आपको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. ये जो टर्म आएगी, so del u over del x को अगर आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये क्या बनेगा, del 2u over del y del x. तो वही हमने कैलकुलेट किया है, del 2u over del y del x means differential of del 2u over del x with respect to y. तो अब इस फंक्शन को आपको y के रिस्पेक्ट में करना है, तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x को कांस्टेंट रखोगे. तो sin y कांस्टेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, सॉरी y के रिस्पेक्ट में करा, del u over del x जो भी फंक्शन बना उसको आपको y के रिस्पेक्ट में करना है, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल होगा, x को कांस्टेंट रखना है. तो sin y का डिफरेंशियल क्या हो गया, cos y, और y का क्या हो गया 1, और cos x एज इट इज क्योंकि x कांस्टेंट है. क्लियर? सो cos y प्लस cos x. ऐसे ही अब del u और del y को आप x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए सेकंड वाले फंक्शन को, तो del 2u ओवर del x del y मिलेगा. यानी पहले y के रिस्पेक्ट में किया, फिर x के रिस्पेक्ट में किया, तो y के रिस्पेक्ट में ये है और फिर x के रिस्पेक्ट में. तो अब इसको हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x का डिफरेंशियल होगा, y कांस्टेंट होगा, तो x का 1, तो केवल क्या बचा cos y, एंड sin x का क्या हो जाएगा cos x. तो दोनों को देख सकते हो, द फर्स्ट डेरिवेटिव इज cos x plus cos y and second is also cos x plus cos y. So these derivatives are equal. Now if u is x square y plus y square z plus z square x, then show that these first order derivatives, that these three first order derivatives are equal to x plus y plus z whole square. तो अब आपको क्या करना है, u is a function of x y z. तो तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं x y z, तो तीनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है. सो del u over del x आपको निकालना है, del u over del y आपको निकालना है, del u over del z आपको निकालना है. तीनों को ऐड करना है और ये कितना आ जाएगा, x plus y plus z का होल स्क्वायर. तो पहले इस u को x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, तो x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा तो केवल x वाली टर्म्स का होगा, बाकी सब कांस्टेंट होंगे. तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2xy. इसमें कोई भी टर्म x की नहीं है, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है. और इसमें आपका z स्क्वायर x है, तो x का क्या हो जाएगा 1, तो z स्क्वायर केवल आपका बचेगा.
ऐसे ही फिर y के रिस्पेक्ट में करोगे तो पहली वाली टर्म एक्स स्क्वायर वाई है तो y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1, तो एक्स स्क्वायर, एंड सेकंड वाई स्क्वायर जेड है तो 2yz, और थर्ड वाली टर्म में कोई y नहीं है, जेड स्क्वायर एक्स है, y नहीं है, तो दोनों टर्म कांस्टेंट है यानी 0, केवल ये हो जाएगा। ऐसे ही डेल यू ओवर डेल जेड, तीनों को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट वन फंक्शन। तीनों को जब आप देखोगे तो दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। Next, z is a function of x plus ay and phi of x minus ay. So there are two functions f and phi. So मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, if z is equal to u plus v और u minus v, तो आपको अगर z को डिफरेंशिएट करना है तो वही ऑपरेटर कहाँ हो जाएगा, u plus v पर ऑपरेट हो जाएगा सेपरेटली। तो वही करना है आपको। z दिया है वन फंक्शन ऑफ x प्लस ए वाई एंड सेकेंड फंक्शन ऑफ x माइनस ए वाई, तो आपको प्रूफ क्या करना है, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। सो पहले डेल जेड ओवर डेल एक्स, यानी इसको आपको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि फंक्शन तो हमें नहीं पता क्या वैल्यू है, तो सिंपली वी विल राइट एफ डैश। क्यों, क्योंकि जो भी फंक्शन होगा उसका डिफरेंशियल क्या होगा, एफ डैश। सो एफ डैश ऑफ एक्स प्लस ए वाई, अब अंदर आर्गुमेंट का कर देते हैं, तो आर्गुमेंट का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो 1 प्लस 0, क्योंकि वाई को कांस्टेंट रखोगे तो 1 प्लस 0 यानी इनटू 1 आ जाएगा। सिमिलरली फाई एक्स माइनस ए वाई का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, फाई डैश, और एक्स माइनस ए वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 1, 1 माइनस 0, सो 1। नेक्स्ट डेल जेड ओवर डेल वाई, तो आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में। तो पहले तो f का क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में f डैश ही होगा जो भी डिफरेंशियल है। अब अंदर आर्गुमेंट का x प्लस ए वाई का क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू y, x का 0, ए वाई का क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो a मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही फाई को फाई डैश पहले लिखा, और अंदर अब आर्गुमेंट का x माइनस ए वाई, तो y का डिफरेंशियल क्या हो गया 1, और x का 0, तो 0 माइनस a इंटू 1, तो माइनस a मल्टीप्लाई हो गया। अब डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी जो भी डेल जेड ओवर डेल एक्स है उसको एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यानी इस फंक्शन को आपको एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार और करना है, तो एफ, अब एफ डैश का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई का 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नेक्स्ट फाई डैश का क्या हो जाएगा, फाई डबल डैश और एक्स माइनस ए वाई का 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नेक्स्ट अब डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर चाहिए, यानी डेल जेड ओवर डेल वाई को एक बार और वाई के रिस्पेक्ट में आपको करना है, तो डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज, ए तो ऑलरेडी था, अब एफ डैश का क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश, और एक्स प्लस ए वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई एक ए और आ जाएगा, तो एक ए ऑलरेडी था इसलिए ए इंटू ए स्क्वायर। सिमिलरली माइनस ए तो था ऑलरेडी, फाइव डैश का क्या हो जाएगा, फाइव डबल डैश, एंड एक्स माइनस ए वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या हो जाएगा, 0 माइनस ए वाई का 1, तो माइनस ए ऑल आ जाएगा, तो माइनस ए इंटू माइनस ए क्या बन गया, प्लस ए स्क्वायर। तो दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, अगर हम इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बनेगा, एफ डबल डैश प्लस फाइव डबल डैश, ऐसे ये भी क्या है, एफ डबल डैश प्लस फाइव डबल डैश। सो डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, u is log of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, then show that del over del x plus del over del y plus del over del z square into u is equal to this. So अब u किसका फंक्शन है, x y z, तीन वेरिएबल का, आपको तीनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पहले तो इसको कैसे लिखोगे, डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड होल स्क्वायर, दैट मींस ये दो बार होगा, सो डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड इनटू डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड, इस तरह से। सो इसका स्क्वायर है, सो डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड इनटू डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड इनटू यू, सो इनटू यू, तो पहले यू इस पर ऑपरेट होगा फर्स्ट वाले पर, सो डेल यू डेल एक्स प्लस डेल यू डेल वाई प्लस डेल यू डेल जेड, फिर जो भी ये वैल्यूज आएंगी उनको यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर से आप डिफरेंशिएट करोगे। क्लियर? सो फिर से आप डिफरेंशिएट करो, पहले तो आपको पहले क्या चाहिए, डेल यू डेल एक्स, डेल यू डेल वाई, डेल यू डेल जेड। सो डेल यू डेल एक्स मींस यू हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले तो फंक्शन का होगा, सो लॉग ऑफ समथिंग मींस इनमें x है, तो 1 ओवर लॉग x का क्या होता है, 1 ओवर x, सो 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जो भी x लॉग ऑफ समथिंग, तो 1 अपॉन दिस, और अब आर्गुमेंट का होगा,
तो आर्गुमेंट का क्या हो जाएगा, इस फंक्शन को आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो 3x² वाई क्यूब का 0 जेड क्यूब का 0 क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और -3xyz का क्या हो जाएगा -3yz। तो ये क्या बना 3x², 3 कॉमन है तो 3x² -5z डिवाइडेड बाय समथिंग, और बिकॉज फंक्शन में सिमेट्री है तो मैंने आपको बोला था कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि x³ y³ z³ एक जैसा फंक्शन है, तो आप जैसा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हुआ है वैसे ही आप y के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, वैसे ही z के रिस्पेक्ट में कर देते हो, तीनों के रिस्पेक्ट में सिमेट्री, x³ है तो y³ है तो z³ है, और -3xyz एक जैसी टर्म है, तो जो x के रिस्पेक्ट में है वही y के रिस्पेक्ट में आएगा, वही z के रिस्पेक्ट में आएगा, वो बस आपको करना क्या है, अब x को y से रिप्लेस करना है, तो डेल यू डेल वाई क्या हो जाएगा 3y² माइनस ये yz था, अब क्या बन जाएगा zx ओवर समथिंग, ऐसी डेल यू डेल जेड क्या बन जाएगा 3z² माइनस xy ओवर समथिंग, मींस आपको करना वही है, पहले log ऑफ समथिंग का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 ओवर समथिंग, फिर वो समथिंग का विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू z, तो आपको ये 3 डेरिवेटिव्स मिलेंगे। क्लियर? सो ये हो गया डेल यू डेल एक्स, नेट डेल यू डेल वाई क्या होगा 1 ओवर दिस इनटू डिफरेंशियल ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो x³ का 0 हो जाएगा 3y², z³ का 0 हो जाएगा -3xyz का विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा -3x सॉरी 3xz, तो हमने 3 कॉमन ले लिया तो 3y² माइनस zx, ऐसे ही डेल यू डेल जेड का ये मिलेगा। क्या करना है आपको, तीनों को ऐड करना है, तो तीनों को जैसे ही ऐड करोगे आप तो डिनोमीटर तीनों का सेम है, तो 3x³ प्लस y³ प्लस z³ सॉरी x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, और ऊपर क्या मिलेगा 3x² माइनस 3yz, 3y² माइनस 3zx एंड 3z² माइनस 3xy, तो 3 तो कॉमन है सभी में, सो x² प्लस y² प्लस z² माइनस yz माइनस zx माइनस xy। अब देखिए जो नीचे वाली टर्म है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, उसको हम लिख सकते हैं x प्लस y प्लस z into x² plus y² plus z² minus yz minus zx minus xy. So this is the formula of a cube plus b cube minus c cube minus 3abc. So this is a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. So इससे ये वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी, केवल क्या बचेगा 3 ओवर x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए जो हमें प्रूफ करना था द वैल्यू ऑफ डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर जेड होल स्क्वायर इनटू यू मीन्स इज इक्वल टू -9 ओवर समथिंग, तो इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। सो डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड स्क्वायर यू इज इक्वल टू दिस, इस ऑपरेटर का हमने स्क्वायर 2 बार लिख लिया, फिर u को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब ऑपरेट कर दिया, सो डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई डेल यू ओवर डेल जेड, इस ब्रैकेट की जो वैल्यू है that is 3 over x plus y plus z from here now। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा 3 तो कॉमन कांस्टेंट है बाहर आ गया, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ दिस फंक्शन, डेल ओवर डेल वाई ऑफ दिस फंक्शन एंड डेल ओवर डेल जेड ऑफ दिस फंक्शन, ये फंक्शन तीनों पर ऑपरेट हो गया, सो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ दिस फंक्शन, डेल ओवर डेल वाई ऑफ दिस फंक्शन, डेल ओवर डेल जेड ऑफ दिस फंक्शन, तो ये फंक्शन हमने तीनों ऑपरेटर पर ऑपरेट कर दिया। अब आपको इसको डिफरेंशिएट कर दिया, सो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ दिस, इसको आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट में, तो पहले तो डिनोमिनेटर का होगा, सो 1 ओवर x टाइप का है, सो 1 ओवर x का क्या होता है -1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो पहले क्या हो जाएगा -1 ओवर जो भी नीचे है उसका स्क्वायर इनटू फिर इसका हो जाएगा, सो x प्लस वाई प्लस जेड का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1 प्लस जीरो क्योंकि y और z कांस्टेंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1। सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में भी वही मिलेगा, z के रिस्पेक्ट में भी वही मिलेगा, तो ये तीनों का टोटल आप करोगे -3 टाइम्स -3 ओवर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू 3 बाहर है, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ u इज साइन इनवर्स x over y plus tan inverse y over x then show that the x del u over del x plus y del u over del y is equal to 0। तो पहले तो u आपको फंक्शन दिया है ऑफ x एंड y, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट पहले आप निकालिए del u over del x, तो del u over del x कैसे निकालोगे, साइन इनवर्स x ओवर y, तो साइन इनवर्स द डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन इस केस में हमारा एंगल क्या है x ओवर y, सो 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर इनटू, अब डिफरेंशियल ऑफ x ओवर y, सो डिफरेंशियल ऑफ x ओवर y विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 ओवर y, सो 1 ओवर,
नेक्स्ट प्लस, अब नेक्स्ट का करते हैं तो टेन इनवर्स का पहले कर देते हैं, तो टेन इनवर्स थीटा का क्या होता है 1 ओवर 1 प्लस थीटा स्क्वायर, सो 1 ओवर 1 प्लस y ओवर x स्क्वायर इनटू अब y ओवर x का होगा विद रिस्पेक्ट टू x, हम विद रिस्पेक्ट टू x की बात कर रहे हैं, सो विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में x है, सो माइनस 1 ओवर x स्क्वायर इनटू y चलेगा, सो माइनस y ओवर x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करिए तो आपको ये मिलेगा, इसको वाई स्क्वायर एलसीएम होगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 1 ओवर वाई, और वो ऊपर जाएगा तो वाई ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इनटू वाई ये था, इसलिए इस वाई से वो वाला वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर ये वाले एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वाई ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो अब हमें प्रूफ क्या करना है कि x इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स, तो हमने इसमें x का मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स, तो राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो x ओवर समथिंग एंड इसमें भी x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें चाहिए y डेल यू ओवर डेल y, तो डेल यू ओवर डेल y इज इक्वल टू, अब इसको हमें डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो पहले तो साइन इनवर्स थीटा का होगा, सो साइन इनवर्स थीटा का ये हम कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, when z is a function of u and u is a function of ये वाला, when z is a function of u and u is a function of xy, तो पहले तो क्या होगा डेल z ओवर डेल x अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है डेल z ओवर डेल u, पहले z को u के रिस्पेक्ट में करना है, u को x के रिस्पेक्ट में करना है, ऐसे ही y के रिस्पेक्ट में करोगे तो डेल z ओवर डेल u इंटू डेल u ओवर डेल y, तो वही टाइप के क्वेश्चन है। z पहले u फंक्शन है साइन इनवर्स x ओवर y, तो x ओवर y वेरिएबल है, तो पहले आप इसको सपोज थीटा ए, तो पहले इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करिए साइन इनवर्स थीटा, तो थीटा के और फिर थीटा का x के रिस्पेक्ट में, ऐसे ही इसमें टेन इनवर्स थीटा का पहले थीटा के रिस्पेक्ट में फिर थीटा का x के रिस्पेक्ट में, तो वही कंसेप्ट हम लगा रहे हैं। सो डेल यू डेल वाई पहले साइन इनवर्स का हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर इनटू थीटा का विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी अब हम y के रिस्पेक्ट में करें डेल यू डेल वाई, सो थीटा का विद रिस्पेक्ट टू y, थीटा क्या है x ओवर y, तो इसका y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा माइनस x ओवर y स्क्वायर। ऐसी टेन इनवर्स y ओवर x का पहले 1 ओवर 1 प्लस y ओवर x स्क्वायर, थीटा का हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस थीटा स्क्वायर, अब थीटा का y के रिस्पेक्ट में, सो y के रिस्पेक्ट में इसका y ओवर x का क्या हो जाएगा 1 ओवर x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको ये मिलेगा, इसमें y का मल्टीप्लाई करेंगे तो y यहाँ y और आएगा माइनस एक्स, ओके y इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर जो है वो x ओवर y है, देखिए ये माइनस एक्स ओवर वाई स्क्वायर है, जब इसका एलसीएम लोगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो केवल y बाहर आएगा, y और यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो ये वाला y एक स्क्वायर को हटा देगा कैंसिल कर देगा, तो केवल क्या हो जाएगा माइनस एक्स ओवर वाई, तो यहाँ माइनस एक्स ओवर वाई है, अब आपने y का मल्टीप्लाई किया है तो माइनस एक्स वाई वाई डिवाइडेड बाय वाई से वो y कैंसिल हो गया, इसलिए केवल क्या बचा है x ओवर समथिंग प्लस x इंटू वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको दोनों को ऐड करके बताना है दैट इज जीरो, तो दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको जीरो मिल जाएगा, दिस इज सो पहली टर्म देखिए ये प्लस एक्स ओवर समथिंग है, ये माइनस एक्स ओवर समथिंग है, सेम है, दूसरी टर्म माइनस एक्स वाई ओवर है, ये प्लस एक्स वाई ओवर है, तो सेम टर्म है, बस ये यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस है, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा जीरो। नेक्स्ट del u if u is function of r and r is a function of x square y plus y square, then show that del 2 u over del x square del 2 u del y square is equal to this। तो देखिए पहले तो r स्क्वायर, क्योंकि ये फंक्शन क्या बनेगा, देखिए डेल यू ओवर, ये डेल आर नहीं है, ये डेल यू ओवर डेल एक्स है, तो डेल यू ओवर डेल एक्स को पहले, क्योंकि u इज अ फंक्शन ऑफ r, तो आप क्या करोगे डेल यू ओवर डेल एक्स ऑफ u इज इक्वल टू, पहले तो आप u को r के रिस्पेक्ट में करोगे क्योंकि डायरेक्टली वो r का फंक्शन है, तो डेल यू ओवर डेल आर इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स, क्लियर, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। तो आपने डेल यू ओवर डेल एक्स क्योंकि निकालना था, क्योंकि डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर चाहिए प्रूफ करने के लिए, तो यानी वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, सो डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू पहले डेल यू ओवर डेल आर, तो यानी u को r के रिस्पेक्ट में करना है, तो एफ आर फंक्शन है तो क्या हो जाएगा एफ डैश आर,
इनटू डेल आर ओवर डेल एक्स. सो डेल आर ओवर डेल एक्स, यानी अब आपको डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू चाहिए. तो आपको रिलेशन दिया है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा 2r, पहले पावर का होगा 2r और फिर r का क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में डेल आर ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 0 क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. सो 2x, यहाँ से डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी x ओवर r. So we have to prove that del 2u over del x square plus del 2u over del y square is equal to something. So for that we need del 2u over del x square, that means double differentiation of u with respect to x. So for that we need first order derivative. So पहले आपने क्या किया del u over del x calculate किया, then again we have differentiated it with respect to x. So del 2u over del x square. Because right hand side is a function of x and r, तो आपको दोनों ही x के फंक्शन है कि r डायरेक्टली किसका फंक्शन है x and y का. तो पहले आप r के रिस्पेक्ट में करोगे देन x के रिस्पेक्ट में करोगे. तो सो del 2u over del x square is equal to del over del x of del u over del x. Now what is the value of del u over del x? X over r f dash r. So this is x into 1 by r f dash r. So because x is a function of x, r is also function of x because r square is x square plus y square. तो आप में इसमें कई सारी वो लगेंगे क्योंकि x भी x का फंक्शन है, r भी x का फंक्शन है, f डैश r भी x का फंक्शन है. सो देयर आर 3 फंक्शंस. सो फर्स्ट इनटू सेकंड से ही होगा. तो देखिए, तो फर्स्ट x का 1 होगा एंड सेकंड फंक्शन एज इट इज. सो द डिफरेंशियल ऑफ x इज 1 and second function is as it is 1 by r f dash r. Now a first function as it is x into differential of f dash r over r. So again we have two functions of x. 1 over r भी x का function है, f dash r भी x का function है. So f dash r is as it is 1 over r differential of 1 over r with respect to x. तो पहले पावर का होगा. So 1 over r the differential is minus 1 over r square into del r over del x y because r is first we have this is function of r. तो पहले r का डिफरेंशियल होगा फिर r का x के रिस्पेक्ट में. ये x था इसलिए x का डायरेक्टली x के रिस्पेक्ट में किया है. तो r का पहले पावर का फिर del r over del x प्लस नेक्स्ट अब x तो एज इट इज था एंड नेक्स्ट 1 over r is as it is and differential of f dash r. So f dash r the differential is f double dash r into del r over del x. सो हमें डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में करना था x के रिस्पेक्ट में. डायरेक्टली फंक्शन r का है तो पहले तो r का डिफरेंशियल मींस उस फंक्शन का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल देन उस r का x के रिस्पेक्ट में. so we have chain rule. So now this is 1 by r f dash r minus del r over del x is x over r. We have already calculated this and similarly इस फंक्शन को अगर हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा 2r del r over del y is equal to x square का 0 and 2y square का 2y. So del r over del y is equal to y over r. तो हमने वही किया था del u over del x is equal to f dash r del r over del x. तो del r over del x की वैल्यू क्या होगी x over r into f dash r. तो यहां पर भी हमने वही किया del r over del x को क्या रखा है x over r and इधर भी del r over del x is x over r. So x over r already था. So x over r into x over r is x square by r square into f double dash r. So ये मिला del 2u over del x square. And similarly because function में symmetry है fr and r square is equal to x square plus y square. तो जैसे x के रिस्पेक्ट में होगा वैसे ही डिफरेंशियल y के रिस्पेक्ट में होगा. So del 2u over del y square is equal. Similarly आपको केवल x को y से चेंज करना है तो 1 over r f dash r एंड एक्स स्क्वायर किससे रिप्लेस हो गया y स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर किससे रिप्लेस हो गया y स्क्वायर से. बाकी सब फंक्शन एज इट इज. सो हमें दोनों को ऐड करना है. द एडिशन ऑफ दीस इक्वेशंस मस्ट बी f डबल डैश r प्लस 1 ओवर r f डैश r. दोनों को ऐड किया. सो ऐड करने पर हमें ये मिला. देखिए so this is 1 by r f dash r 1 by r f dash r. So 2 times 1 by r f dash r. Now minus x square minus y square. So minus x square minus y square over r cube f dash r
x square plus y square over r square f double dash r. Now x square plus y square is r square, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया आर स्क्वायर से. सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर रिप्लेस कर दिया, डिवाइड किया, तो आपको जो प्रूफ करना था वो हमें मिल जाएगा. क्लियर? अगेन x to the power x, y to the power y, z to the power z is equal to c constant. Show that at x is equal to y is equal to z, the derivative del 2 z over del x del y is equal to something. So now the function is x to the power x, y to the power y, z to the power z is equal to c. So which is very typical to differentiate. तो इस टाइप के फंक्शन में जब पावर में वेरिएबल होता है तो हम क्या करते हैं, वी यूज लॉगरिथम प्रॉपर्टी. So we operated log property here. So log of this is equal to log of c. So log of x to the power x, y to the power y, z to the power z is equal to x log x plus y log y plus z log z using the log property. Log of x to the power m is m log x और log of x into y is equal to log x plus log y. ये दोनों प्रॉपर्टी अगर आप यूज करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपको ये मिलेगी is equal to log c. Now अब हमें डिफरेंशियल क्या चाहिए, del 2 z over del x del y. दैट मींस del z over del y, यानी पहले z को y के रिस्पेक्ट में करना है, फिर जो भी डिफरेंशियल आएगा उसको x के रिस्पेक्ट में करना है. तो पहले y के रिस्पेक्ट में, हम राइट से स्टार्ट करते हैं. सो पहले z को y के रिस्पेक्ट में, तो del z over del y, यानी अब देखिए इन्होंने वही, क्योंकि सिमिट्री है फंक्शन में, x टू द पावर x, y टू द पावर y, z टू द पावर z इज इक्वल टू c, तो इन्होंने पहले x के रिस्पेक्ट में कर दिया है, फिर इसमें x को y से चेंज करके हमें del z over del y लिख दिया है. बट आप कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ सिमिट्री है तो पहले इन्होंने y x के रिस्पेक्ट में कर दिया, आप डायरेक्टली y के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हो. तो सपोज हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो पहले x log x का हो जाएगा, तो x into log x का 1 by x प्लस x का 1 log x एज इट इज. नाउ अब हम, क्योंकि इस डेरिवेटिव, देखिए हमें यहाँ नहीं पता है विच इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, बट इस डेरिवेटिव से हम बता सकते हैं कि इंडिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है, क्योंकि हम z को डिफरेंशिएट कर रहे हैं. सो z इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y. सो x और y तो इंडिपेंडेंट हो गए, तो x log x का विद रिस्पेक्ट टू x, x into 1 over x plus 1 into log x, and y log y क्योंकि कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x, सो इसका क्या हो जाएगा, 0. नेक्स्ट z into log z, and now z is a function of x and y, तो z is dependent variable, तो z का आपको x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा. तो पहले तो डायरेक्ट z का, तो z into log z का 1 by z and z का 1 log z as it is into del z over del x. तो z is a function of u is a function of x y, वही रूल हमने अप्लाई किया है, पहले डायरेक्ट z के रिस्पेक्ट में एंड z का x के रिस्पेक्ट में del z over del x is equal to 0. why? Because log c is constant, so log c is also a constant, so differential of log c is 0. So when you solve this for del z over del x, you will get 1, because this x into 1 by x is 1 plus log x, so इसको उस साइड ले जाओगे तो minus 1 plus log x and divided by this term, so z into 1 by z 1 plus log z, so 1 plus log z. This is del z over del x. Now similarly del z over del y क्या होगा, क्योंकि इस फंक्शन में सिमेट्री है तो केवल x को y से रिप्लेस कर दीजिए, सो माइनस 1 प्लस log y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log z. सो हमें कैलकुलेट क्या करना है, del 2z over del x del y, दैट मींस del over del x ऑफ del z over del y. तो del z over del y की वैल्यू ये है, इसको अब आप x के रिस्पेक्ट में करिए. नाउ x के रिस्पेक्ट में करना है एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ y, सो दिस इज कांस्टेंट, so minus 1 plus log y is out of this differential because this is constant with respect to x, so constant को हम बाहर रख देते हैं. Now del over del x of 1 plus log z inverse, 1 over 1 plus log z can be written as 1 plus log z inverse. तो इसको कर दीजिए, पहले पावर का करिए, तो minus 1, तो minus into पावर क्या हो जाएगा, minus 2 and into now 1 plus the differential of 1 plus log z, so 1 का तो 0 हो जाएगा और log z का क्या होगा, 1 by z into del z over del x. तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो 1 प्लस log y z 1 plus log z square into del z over del x. Now del z over del x is this 1 plus log x by 1 plus log z minus sign, so this is the value of this. Now you have to calculate this derivative at point x is equal to y is equal to z.
सो एट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z मीन्स हमें एक ही वेरिएबल रखना है, सभी को हमने x के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो दिस इज 1 प्लस लॉग x बाय x प्लस 1 प्लस लॉग x स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग x प्लस 1 प्लस log x. So सबको जब सिंप्लीफाई करोगे you will get the required answer 1 by x 1 plus log x and 1 can be written as log e because the value of log e base e is 1, so 1 can be written as log e. So now the multiplication rule log m plus log n is equal to log m into n, so log ex. So this is when we take this in the numerator the power is negative, so this we had to prove. There are very simple questions. अब u दिया है फंक्शन ऑफ y ओवर x, आपको del u और del x निकालना है, del u और del y निकालना है. सो पहले फंक्शन का होगा del u और del x, यानी फंक्शन का क्या हो जाएगा f डैश, और y ओवर x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा माइनस y ओवर x स्क्वायर. इसमें x को मल्टीप्लाई करना है तो x का मल्टीप्लाई कर दिया. सिमिलरली del u और del y, पहले फंक्शन का करिए f डैश, फिर आर्गुमेंट का करिए विद रिस्पेक्ट टू y, तो y ओवर x का क्या हो जाएगा 1 बाय x, इसमें y का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, 0 मिल जाएगा. ऐसे ये है u आपका फंक्शन दिया है ऑफ x एंड y, आपको प्रूफ क्या करना है del u और del x del u और del y निकालना है, इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटू करना है, इसमें 1 बाय y स्क्वायर का इंटू करना है, फिर जो फंक्शन आएगा उसको y के रिस्पेक्ट में, ये फंक्शन जो आएगा उसको x के रिस्पेक्ट में, दोनों को ऐड करके 0 प्रूफ करना है. तो u डायरेक्टली ये फंक्शन है. आपको क्या क्या चाहिए, पहले del u और del x del u और del y. तो del u और del x क्या हो गया, इसको x के रिस्पेक्ट में कीजिए तो पहले तो पावर का हो जाएगा, तो -1/2, पावर क्या हो जाएगा -1/2 -1 -3/2. अब अंदर आर्गुमेंट का कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का 0 -2xy का -2y और y स्क्वायर कांस्टेंट है तो 0, केवल x के रिस्पेक्ट में करना है. u इज डिपेंडेंट, x एंड y आर इंडिपेंडेंट. सो इसको सिंप्लीफाई करोगे ये मिलेगा, इसमें फिर आपको किसको मल्टीप्लाई करना है del u और del x में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये फंक्शन आ गया. अब इसको आपको x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करना है. सो del over del x ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर del u over del x. तो अब इसको आपको यानी ये फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो y तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया. नाउ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू फंक्शन ऑफ x, तो देयर आर टू फंक्शंस ऑफ x, सो वन फर्स्ट इनटू सेकंड से होगा. सो पहले तो हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर का किया है तो -2x, फिर इस वाले ये फंक्शन एज इट इज प्लस नेक्स्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन, उसको हमने डिफरेंशियल किया है. सो सिंप्लीफाई करके आपको ये मिला. उसके बाद क्योंकि 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर -3/2, पावर ओरिजिनली u की वैल्यू क्या है -1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर -1/2 टू होल पावर 3, सो दिस इज u टू द पावर 3. सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये u की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा. अब आपको del u और del y चाहिए, यानी u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसको आप y के रिस्पेक्ट में करिए. तो पहले पावर का होगा, फिर इस फंक्शन का होगा y के रिस्पेक्ट में, तो 1 माइनस 1 का 0 -2x, y का -2x एंड y स्क्वायर का 2y. ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके ये लिखा. बाकी आपको क्या करना है, इसमें y स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है, तो y स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, ये फंक्शन आया. नेक्स्ट अब इसको हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो del ओवर del y ऑफ y स्क्वायर del u ओवर del y. तो जो भी इसका आपको पता है कि x माइनस वाई में y है, y स्क्वायर में y है, इस फंक्शन में y है, तो देयर आर 3 फंक्शंस. तो फर्स्ट इनटू डिफरेंशियल ऑफ अदर 2, इससे ही आपको सिंप्लीफिकेशन करके. सो तो इसको आप पहले इन्होंने इसका किया है x माइनस वाई स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर का 2y, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, सो 2xy माइनस 3y स्क्वायर सेकेंड एज इट इज, फिर xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब एज इट इज एंड डिफरेंशियल ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू y. तो इसको पहले पावर का हुआ, पावर के बाद फिर अंदर फंक्शन का हुआ विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ गया. सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, यू विल गेट 0. सिमिलरली ये भी एक फंक्शन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, y है, z है. देयर आर 3 independent variables and u is a function of x, y, z. Show that
डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर जेड, ये तीनों कैलकुलेट करिए। फर्स्ट में एक्स का मल्टीप्लाई कीजिए, सेकंड में वाई का, थर्ड में जेड का, ऐड कर दीजिए, आपको क्या मिलना चाहिए? माइनस यू। तो यू फंक्शन है, पहले आप डेल यू ओवर डेल एक्स निकालोगे। सो यहाँ इस केस में तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जेड फंक्शन नहीं है, जेड डिपेंडेंट नहीं है। तो पहले पावर का होगा और फिर अंदर वाले फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, बाकी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, क्योंकि u डिपेंडेंट है, बाकी सब इंडिपेंडेंट है। अदरवाइज केवल ये इक्वेशन होती है इज इक्वल टू 0, तो z डिपेंडेंट हो जाता है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बट हमें दिया है u इज अ फंक्शन ऑफ दीज थ्री वेरिएबल्स, दैट मींस u इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स वाई जेड आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ऐसे ही, तो डेल यू डेल एक्स, एक्स का मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट दिस। तो क्योंकि फंक्शन में सिमेट्री है, एक्स वाई जेड की सेम टर्म्स हैं, तो द सेम वे वी विल गेट डेल यू डेल वाई, वाई का मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट दिस, z इंटू डेल यू डेल जेड इज दिस। तो तीनों को ऐड करिए, यू विल गेट दिस, सो दिस इज इक्वल टू माइनस यू। अगेन अब आपको डिफरेंट डबल डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो डेल यू डेल एक्स जो भी था उसको एक्स के रिस्पेक्ट में और एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, you will get this. Similarly, del 2u over del x square is this, so del 2u over del y square is this, because symmetry है function में, del 2u over del z is this, so this will you will 0। यहाँ पर क्या है? थीटा इज t to the power n e to the power minus r square by 4t, so डिफरेंशियल हो रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। so r and t are independent variables and theta is dependent variable, so थीटा को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, थीटा को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r, और ये कॉम्बिनेशन हमें चेक करना है। So we have to check that what is the value of n for which this term is equal to this. Clear? So theta is equal to this. तो पहले क्या क्या चाहिए? डेल थीटा ओवर डेल आर भी चाहिए हमें, एंड डेल थीटा ओवर डेल टी भी चाहिए। So डेल थीटा ओवर डेल आर, that means we have to differentiate it with respect to r only. So t to the power n is constant because t is independent variable. So e to the power minus r square by 4t with respect to differential of this function with respect to r. So पहले e की पावर का, so e to the power minus r square by 4t, and then the power differential, so minus r square by 4t with respect to r, so minus 2r by 4t. So when you simplify this you will get this। आशीष आवाज किसकी हो रही है? So and because in we have to multiply r square into del theta over del r, so r square into del theta over del r is equal to, इसमें हमने r का मल्टीप्लाई किया, you will get this। now we have to differentiate this function with respect to r, so del over del r of the r square del theta over del r। so again because t to the power n minus 1 is free from r, it is independent variable, so this will be treated as constant। so minus 1 by 2 t to the power n minus 1 is constant, and rest r cube into e to the power minus r square 40, both are functions of r। so first r cube का क्या होगा? 3r square into second as it is, and second r cube as it is, and differential of e to the power minus r square by 40 is this। you will simplify this, you will get this equation। now del theta over del t, for right hand side we need del theta over del t, so now we have to differentiate this theta function with respect to t, so only the term including t will be differentiated। so t to the power n differential is n t to the power n minus 1, and again because here we have e to the power minus r square by 40, so this is also a function of t, so this function as it is, and the second this differential of this function। so when you simplify this you will get del theta over del t, and in this, so we have to prove that this value is equal to this, then what is the value of n? so हमने दोनों को equal कर दिया, means LHS is equal to RHS, so this is equal to this। so when you simplify this, so what we'll get, so this term is equal to this term, so these will be cancelled out। now minus 3 by 2 t to the power n minus 1 into this is equal to this, so again we have e to the power minus 4 r square 40 is cancelled out by this, t to the power n minus 1 will be cancelled out by this, so only thing is left, minus 3 by 2 is equal to n, so the value of n is minus 3 by 2।
So similarly, you can try other questions. If you find any difficulty, we can discuss in the live classes or in the WhatsApp group. So the same questions are there. Only you have to differentiate partially. So these are some more unsolved questions for practice. So in the next lecture, we will discuss about homogeneous function.